अब हम चलते हैं हमारी दूसरी किताब पे, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। एंड द मिरेकल्स ऑफ स्लीप वाला चैप्टर हम कर रहे हैं। जब हमने कल पढ़ा था कि स्लीप मिनिमम 6 घंटे की बहुत जरूरी है। अगर किसी को लगता है मुझे इतनी नींद नहीं चाहिए, तो डॉक्टर मर्फी ने लिखा है दैट पर्सन इज फूलिंग देमसेल्व्स। ऐसा नहीं होता है। शरीर को क्या चाहिए और हमको क्या चाहिए, इसमें हमेशा फर्क होता है, इजंट इट? सो दैट वे अब हम आगे पढ़ेंगे जहां पे इन्होंने लिखा हुआ है यू नीड मोर स्लीप। और कल हमने ये भी पढ़ा था, जहां पे जिन डॉक्टर ने वो किताब लिखी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था कि स्लीप के टाइम आप परमात्मा से कनेक्ट करते हो। दैट मीन्स सुपर कॉन्शियसनेस, गॉड, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, जो भी हम बोले, है ना, आप भगवान की शक्तियों से कनेक्टेड होते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्लीप। ये उन डॉक्टर ने बोला था जो मेडिकल डॉक्टर हैं, जिन्होंने वंडर्स ऑफ द स्लीप करके किताब लिखी थी। तो उन्होंने ये सारी चीजें बताई थी। तो हम अब आगे पढ़ते हैं एंड नूतन इज रीडिंग फॉर अस। Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग नूतन। इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? Yes, ma'am. ओके। You need more sleep. Robert O'Brien, in an article, Maybe You Need More Sleep, in an issue of the Reader's Digest, reports the following experiment on sleep. For the last 3 years, experiments have been in progress at Walter Reed Army Institute of Research in Washington, D.C. Subjects, more than 100 military and civilian volunteers, have been kept awake for as thousands of tests have measured the effect and personality. Results have given scientists astonishingly new insights into the mysteries of sleep. They now know that the tired brain apparently craves it will sacrifice माय anything to get नूतन, it. आपका नेटवर्क का थोड़ा इशू है, थोड़ा सा ऊपर से Yes, कर ma'am. लो। For the last 3 years, from here should I read, ma'am? For the या last 3 years? you For the last 3 years, experiments have been in progress at research in Washington, D.C. Subjects, more than 100 military and civilian volunteers have been kept awake for as long as 4 days. Thousands of tests have measured the effects on their behavior and personality. Results of these tests have given scientists astonishingly new insights into the mysteries of sleep. They now know that the tired brain apparently craves sleep so hungrily that it will sacrifice anything to get it. After only a few hours of sleep loss, fleeting stolen naps called lapses or microsleep occur at the rate of 3 or 4 an hour. As in real sleep, eyelids drooped, heartbeat slowed. Each lapse lasted just a fraction of a second. Sometimes the lapses were periods of blankness. Sometimes they were filled with images, which of dreams. As hours of sleep loss mounted, the lapses took place more often and lasted longer, perhaps 2 or 3 seconds. Even if the subjects had been piloting an airliner in a thunderstorm, they still could not have resisted microsleeps for those few priceless seconds. And it can happen to you, as many who have fallen asleep at the wheel of a car can testify. Another startling effect of sleep deprivation was its attack on human memory and perception. Many sleep deprived subjects were unable to retain information
long enough to relate it to the task they were supposed to perform. They were totally befuddled in situations requiring them to hold several factors in mind and act on them. As a pilot must, when he skillfully integrates wind direction, air speed, altitude, and glide path to make a safe landing. Sleep brings One counsel. second. A One second, young Nuthan. lady. One Yes, second, Nuthan. Am I audible to you? yes, Yeah. yes, So ma'am. this हाँ सो ये वाला टॉपिक हम डिकोड कर लें, समझा लें। बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं समझते बहुत अच्छे से। सो यू नीड मोर स्लीप। सो इसमें ये लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट किया था वॉशिंगटन डीसी में, जहां पे 100 वॉलंटियर्स को 4 दिन ठीक से नहीं सोने दिया था, ये देखने के लिए कि उनके बिहेवियर पे, उनकी पर्सनालिटी पे और उनके वर्क आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है। और इसके बहुत एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स थे जो इन्होंने लिखा हुआ है। तो इनके परसेप्शन, मेमोरी, हर चीज पे उसका फर्क पड़ा था। रात में जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी हमको रिजुविनेट करती है, दोबारा से एक नई जिंदगी के लिए क्रिएट करती है। और बहुत सारे बायोकेमिकल, हार्मोनल, रेस्टोरेटिव चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, है ना। जैसे हमारे इम्यून सेल्स रात को बनते हैं। अगर आपने सुबह भी वर्कआउट किया है लेकिन फैट लॉस आपका रात को होगा। फिर अगर आपने बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सुबह की है तो आपकी जो मसल रिपेयर और वो सब होता है वो रात को होता है ना। सारी बॉडी की जो फैक्ट्रीज हैं एंजाइम्स की, वो कब खुलती हैं? रात को खुलती हैं। सो क्लीनिंग कब होती है बॉडी की? आपने कभी भी देखा होगा सुबह का यूरिन बहुत वार्म होता है और बहुत ज्यादा येलोइश होता है। वाई? बिकॉज रात में जब आप सोए हो तो पूरी बॉडी की क्लीनिंग हो रही थी, है ना। कभी कभी ब्रेन टायर्ड हो जाते हैं, सुबह उठ के बहुत फ्रेश फील करते हैं। तो इन 100 लोगों को जिनका एक्सपेरिमेंट किया था, 100 मिलिट्री के लोग थे, इनका आउटपुट देखने के लिए क्या था कि 4 दिन इनको अच्छे से सोने नहीं दिया था और उसके बाद देखा था तो इनके बिहेवियर में, हर चीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया था। प्लस ये लैप्सेस जा रहे थे। लैप्सेस का मतलब होता है बीच बीच में, जैसे नींद का झोंका बोलते हैं इसको हिंदी में। इनको झोंके आ रहे थे नींद के बार बार, जिसको हम माइक्रो स्लीप बोलते हैं, है ना। माइक्रो स्लीप लगातार, और अगर वो जितना और समय के चलते चलते ये और ज्यादा उनके साथ होने लगा, दैट और फिर जो इनके बॉडी में डैमेज थे वो डेफिनेटली मेजर किए गए कि डैमेज इनके बहुत ज्यादा थे। पहले इसमें लिखा हुआ था कि हर लैप्स होता था वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के लिए होता था, और धीरे धीरे वो बढ़ता गया। इट वुड स्टार्ट इट लास्टेड लॉन्गर। फिर इसमें बताया हुआ है कि हमने देखा है कई लोग ड्राइव करते करते सो गए, या इमेजिन कि वो पायलट है और वो मतलब ऑफ कोर्स प्लेन को मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है जैसे थंडर स्टॉर्म में जा रहे हैं, इमेजिन उनके लैप्स हो गए, उनको लैप्स आ गया, मतलब उनका एकदम नींद का झोंका आ गया और आंखों के सामने पूरी ब्लैंकनेस हो गई, ब्लैकआउट हो गया। तो ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं। प्लस मल्टीट्यूड चेंजेस उनके शरीर में होते हैं। इम्यूनिटी लेवल कहते हैं कि अगर आपकी आधे घंटे की नींद अगर कम होती है तो आपको 5 दिन उतने इम्यून सेल्स बनाने में लगते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों को हम रियलाइज नहीं करते। इसीलिए अर्ली, और ये तो इसमें सिर्फ स्लीप के बारे में लिखा हुआ है, स्लीप एट एनी टाइम, बट ये अर्ली पार्ट ऑफ द स्लीप में ये सारे चेंजेस, गुड चेंजेस जो हमारी बॉडी में होते हैं ना, रिवाइविंग, कंस्ट्रक्टिव, रिजुविनेटिंग, ये रात को 10 बजे से 1:30-2 बजे तक होते हैं। तो रात को 10 पीएम से 2 AM की जो स्लीप होती है, उसमें सबसे गहरी नींद, उसको नॉन रेम स्लीप बोलते हैं माइंडली, उसमें सबसे गहरी नींद इंसान को आती है ना। और उस वक्त आपकी बॉडी में इतने अमेजिंग चेंजेस होंगे दैट यू विल फील दैट जितने भी जल्दी सोने वाले लोग हैं उनकी मेमोरी अच्छी होगी, उनका प्रोडक्टिव, दे विल बी मोर प्रोडक्टिव, इनकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। वाई? बिकॉज ब्रेन बहुत अच्छे से चलता है, बहुत शार्प होता है, पर्सनैलिटी, मेमोरी, आदतें, परसेप्शन सब डिफरेंट होगा अगर आप जल्दी सोते हो। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्लीप में ही हमारे सारे रेस्टोरेटिव चीजें होती है। सेकेंड पार्ट ऑफ द स्लीप जो हमारा होता है रात को 1:30-2 बजे से लेके 3 बजे तक, वो इंटरमीडिएट स्लीप होती है।
डेफिनेटली उसमें बॉडी नीड्स द रेस्ट, बॉडी रेस्ट कर रही होती है उस टाइम। और जो 3 से लेके 3:30 से 5:30 तक की होती है वो तो बिल्कुल अल्फा स्टेट में हो जाते हैं। उसमें ये होता है कि अगर कोई रूम में भी आ गया तो आपकी आंख खुल जाएगी, या आपकी नींद को टूट जाती है अगर 3:30-4 बजे, तो आपको दोबारा नींद भी नहीं आएगी अगर आप 10 बजे सो गए थे तो, बिकॉज बॉडी को जितना कोटा चाहिए था नींद का उतना मिल गया है। तो इसीलिए पूरी रात की जो नींद है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो फर्स्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है 10 से लेके 2 बजे तक का। अगर उस वक्त अगर आप जगे हुए रहते हो तो आपको हमेशा हेल्थ में इश्यूज रहेंगे, मेमोरी में रहेंगे, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिटीरियोरेट ही होता रहेगा। और मैंने जो कंटेंट्स लिखे हुए हैं तो उसमें हमने ये भी बताया है कि डिमेंशिया यानी कि फॉरगेटफुलनेस की बीमारी, अल्जाइमर्स और एंगर, इरिटेशन, डिप्रेशन, ये तभी होता है जब आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्लीप को नहीं लेते हो, लाइक व्हेन यू आर नॉट स्लीपिंग इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नाइट। सो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि सनसेट के 3 घंटे के अंदर अंदर आप सो जाओ और ब्लू लाइट से दूर रहो। ब्लू लाइट क्या, फोन की लाइट, लैपटॉप की लाइट, किंडल की लाइट, टेलीविजन की लाइट, इनको ब्लू लाइट बोला जाता है, इनके ब्लू वेव्स होते हैं। और ये बहुत ज्यादा डिटीरियोरेट करती हैं हमारी आंखों को भी और हमारे ब्रेन को भी। और ब्रेन के सेल्स में बहुत डीजेनरेशन होना शुरू हो जाता है ब्लू लाइट की वजह से, वो भी सोने के 45 मिनट्स टू 1 आवर पहले। और ब्लू लाइट की वजह से हमारा स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन जो है वो नहीं निकलता है। ठीक है, जब तक ऑप्टिक नर्व यानी कि आंखों की नर्व स्टिमुलेटेड रहती है, जगी रहती है, क्योंकि आप अपने आप को जगा के रखे हुए हो, है ना, तब तक आपका मेलाटोनिन नहीं निकलेगा। आपका वो जो स्लीप वाला सेगमेंट है हॉर्मोन से वो शट डाउन पे होता है, वो उसके दरवाजे ही नहीं खुलते हैं पीनियल ग्लैंड के। पीनियल ग्लैंड के अंदर होता है मेलाटोनिन, वो पीनियल ग्लैंड के दरवाजे ही नहीं खुलेंगे तो मेलाटोनिन कैसे ब्लड में आएगा। और मेलाटोनिन जब तक ब्लड में नहीं आएगा तब तक आपको नींद आएगी ही नहीं। तो लोग अपनी आदतों के शिकार हैं जिसके कारण उनको स्लीप में या मेमोरी में दिक्कत है। कई बार बोलते हैं ना, आई आई एम वेरी फॉरगेटफुल। सो मेनी पीपल आई मीन से दैट आई डोंट रिमेम्बर थिंग्स, आई एम सो फॉरगेटफुल। while there are people who are very sharp और उनकी मेमोरी विद द पैसेज ऑफ एज बेटर होती जा रही है। मेरी मेमोरी तो बेटर होती जा रही है। मैंने कभी भी कोई किताब में कुछ पढ़ा होता है 2 साल पहले, मुझे पहले ये सब याद नहीं रहता था। अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है ना, मुझे और अच्छे से याद रहता है। मतलब लिटरली मुझे पेज नंबर्स भी याद रहते हैं कि उस वाले पेज नंबर पे मैंने ये देखा था, उस दिन मैंने ये पहन रखा था, उस दिन आई डिड दिस एंड आई वेंट देयर, सो एट दिस एज अगर मुझे इतना याद रहता है, दैट मीन्स क्रेडिट स्लीप को जाता है क्योंकि मैं तो अपना स्लीप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, ये लगे, आई डोंट डू लेट नाइट पार्टीज, आई डोंट, बिकॉज मेरी हेल्थ मेरे हाथ में, आपकी हेल्थ आपके हाथ में। या तो आप यस मैन बनते जाओ लोगों को खुश करने के, ओ इट इज सो मच फन टू डू दिस, इज नॉट फन इफ यू आर कॉन्स्टेंटली स्लीपिंग लेट। योर बॉडी क्राइज फ्रॉम इनसाइड, है ना। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वजन नहीं कम हो रहा है तब भी ये रीजन होता है, बिकॉज आपके सारे नेगेटिव हॉर्मोन्स आपके ब्लड में हाई रहते हैं अगर आप नहीं सोते हो। एक दिन भी अगर आप नहीं सोए हो ठीक से, मान लो 1 डे यू हैव मेड इट लेट नाइट, अगले दिन आपका ग्रेलिन लेवल हाई होगा। ग्रेलिन एक बहुत नेगेटिव हार्मोन होता है, इट्स कॉल्ड GHRELIN। इट्स नॉट अ साइंस की क्लास, मैं आपको एविडेंस के साथ बता रही हूँ। इट्स नॉट दैट आपको याद रखने की जरूरत है सारी चीजें, है ना। सो ग्रेलिन लेवल अगर आपका ज्यादा है पूरे दिन भर में, क्योंकि आप कल रात को लेट सोए थे, ग्रेलिन का हार्मोन का काम होता है आपका मेटाबॉलिज्म को बहुत लो करना और आपको कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग्स। तो आप में से जो लोग भी बोलते हो कि मुझे कभी कभी स्वीट क्रेविंग्स होती है, मुझे मीठा खाने का मन करता है, या आप बहुत मैदा खाते हो या जंक फूड खाते हो, या इट इज ऑल कमिंग, ग्रेलिन लेवल आपको हेल्दी नहीं खाने देता। वो आपको उल्टी सीधी चीजें, आपको ना स्वीट की क्रेविंग्स होगी, आप देखोगे जलेबी, रबड़ी और तिरामिसू या इस तरह के डिजर्ट्स, आपको क्रेविंग होगी कि लेट मी ईट अ पीस ऑफ इट, है ना, मन करेगा, क्योंकि ये ग्रेलिन का काम होता है। और वो आपका ओबेसिटी बढ़ाता है, आपका पेट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा अगर आप ठीक से नहीं सोगे तो, टमी बाहर आ जाता है ना। ये सारी चीजें भी होती है। और वेट लॉस को शट डाउन मोड पे डाल देता है। बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट नहीं होता अगर ग्रेलिन लेवल आपका है। और ग्रेलिन क्यों हाई होता है? क्योंकि आप 10:30 बजे के बाद सोए हो, इसलिए। ठीक है, तो ये एडिशनल इनपुट था सबके लिए। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
Sleep brings counsel. A young lady in Los Angeles who listens to my morning radio talks told me that she had been offered a lucrative position in New York City at twice her present salary. She was wondering whether to accept or not and prayed prior to sleep as follows. The creative intelligence of my subconscious mind knows what is best for me. Its tendency is always lifeward and it reveals to me the right decision, which blesses all concerned. I give thanks for the answer which I know will come to me. She repeated this simple prayer over and over again as a lullaby prior to sleep, and in the morning she had a persistent feeling that she should not accept the offer. She rejected the offer, and subsequent events verified her inward sense of knowing because the company went bankrupt in a few months following their offer of employment to her. The conscious mind may be correct on the facts objectively known, but the intuitive faculty of her subconscious mind saw the failure of the concern in question and prompted her accordingly. या सो ये स्लीप ब्रिंग्स काउंसिल का मतलब है हमारी काउंसलिंग भी करता है बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को राइट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो इसमें एक लड़की का एक्सपीरियंस है, उसको बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब मिली, वो ऑलरेडी काम कर रही थी लेकिन उसकी सैलरी एकदम डबल हो गई और न्यूयॉर्क में उसको रेलोकेट करना था बिकॉज उसको जो नई जॉब मिली थी वो वहां से मिली थी। अब इस फीमेल ने अपने सबकॉन्शियस को सोने के पहले पूछा दैट ये प्रे किया दैट टू द डिवाइन इंटेलिजेंस ऑफ माय सबकॉन्शियस माइंड, आई नो दैट यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, दैट आपको पता है मेरे लिए क्या बेस्ट है, and reveal to me the right decision, you know, सबके लिए right decision which is for all concerned, and I give thanks for the answer. Thank you की नोट लगानी पड़ती है साथ में, so and give thanks for the answer and I know that that answer will come to me। मतलब अगर हिंदी में बोले तो उसने अपने अपने अंदर के जो डिवाइन है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है, अपने सबकॉन्शियस अपने अवचेतन मन को बोला कि दैट मुझे पता है कि आपको करेक्ट आंसर पता है और मैं थैंक यू बोलती हूँ मुझे करेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए, जो सिर्फ मेरे लिए नहीं सबके लिए बहुत अच्छा हो, और मुझे पता है कि मेरा डिसीजन जो भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड से अवचेतन मन से आएगा वो करेक्ट होगा। तो ये बोल के वो सो गई। फिर उसके बाद यू नो लाइक ये प्रेयर रिपीट करती गई जब तक उसको नींद नहीं आ गई, ओवर एंड ओवर अगेन। और सुबह जब वो सो के उठी तो उसको नॉन स्टॉप एक हंच आ रहा था कि मुझे न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहिए और मुझे ये नई वाली जॉब नहीं लेनी है, जबकि वो बहुत ल्यूक्रेटिव ऑफर था। अगर हम अपने चेतन मन को यूज करें, जो हमारा ऑब्जेक्टिव माइंड या कॉन्शियस माइंड होता है, चेतन मन को अगर हम यूज करें तो हमको तो बहुत अच्छा लगेगा, वाओ आई गो टू न्यूयॉर्क सिटी, वहां पे मुझे ये भी पर्क्स मिल रहे हैं, मेरी सैलरी भी डबल हो जाएगी, मेरे बहुत सारे फैमिली और फ्रेंड्स भी वहां रहते हैं, चलो ये तो बिल्कुल बढ़िया हो गया, वहां पे फटाफट रेलोकेट, ये हमारा चेतन मन बोलेगा। लेकिन अवचेतन मन जो होता है उसको आपका बहुत आगे का फ्यूचर भी दिखता है, तो उसको ये पता होता है ये डिसीजन ठीक है कि नहीं है। तो अवचेतन मन से वो डिसीजन रिजेक्ट हो गया, है ना, बिकॉज उस लड़की को वो हंच आ गया सुबह दैट मुझे नहीं ज्वाइन करना चाहिए वहां पे। फिर बाद में पता लगा 2 महीने के बाद कि जिस कंपनी में वो न्यूयॉर्क में ज्वाइन कर रही थी वो बैंकरप्ट हो गई, उन्हें बैंकरप्सी फाइल कर दी और वो मतलब कंपनी डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई, है ना। और वो एम्प्लॉयमेंट जहां पे वो काम करती तो उसकी वैसे भी जॉब छूट जाती, और सोचो वो पूरा अपने आप को अप्रूव करके एक शहर से दूसरे शहर जाने को तैयार थी बिकॉज उसकी सैलरी डबल हो रही थी, लेकिन वो कंपनी खत्म हो गई। तो इस तरह सबकॉन्शियस माइंड ने उसको कितनी अच्छी डायरेक्शन देके उसको बचा लिया। एंड ये भी सबकॉन्शियस माइंड की वो होती है ना, बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। हाँ जी नूतन पढ़ो। Yes. Saved from certain disaster. I illustrate
how the wisdom of your subconscious mind can instruct you and protect you relative to your request for right action as you go to sleep. Many years ago, before the Second World War, I was offered a very lucrative assignment in the Orient and I prayed for guidance and the right decision as follows. Infinite intelligence within me knows all things, and the right decision is revealed to me in divine order. I will recognize the answer when it comes. I repeated this simple prayer over and over again as a lullaby prior to sleep, and in a dream came the vivid realization of things to me. 3 years hence, an old friend appeared in the dream and said, "Read these headlines. Do not go." The headlines of the newspaper, which appeared in the dream, related to the war and the attack on Pearl Harbor. Occasionally, the writer dreams literally. The aforementioned dream was undoubtedly a dramatization of the subconscious mind, which projected a person whom I trusted and respected. To some, a warning may come in the form of a mother who appears in a dream. She tells the person not to go here or there, and the reason for the warning. Your subconscious mind is all wise. It knows all things. Oftentimes, it will speak to you only in a voice that your conscious mind will immediately accept as true. Sometimes, your subconscious will warn you in a voice which sounds like that of your mother or some loved one, which may cause you to stop on the street. And you find if you had gone another foot, a falling object from a window might have struck you on the head. My subconscious mind is one with the universal subconscious, and it knew the Japanese were planning a war, and it also knew when the war would start. So, Dr. Nूतन Lee. will only be able to read so much today. Yes, It's ma'am. already 7. Thank you so much for your beautiful reading. It's always a pleasure to listen to you. It's my pleasure. Thank you very much, ma'am. थैंक यू सो इस वाले टॉपिक में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई है उस पर्सन को रेलोकेट किया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद असाइनमेंट में ओरिएंट में उसने अपने सबकॉन्शियस को कहा प्लीज रिवील टू मी द आंसर इफ आई शुड गो और नॉट बिकॉज उसको ऑप्शन था नहीं जाने का और उसका बहुत पुराना फ्रेंड उसकी ड्रीम में आया और उसको कह रहा था डोंट गो बाद में पता लगा कि जहां पे वो जा रहा था वहां पे पर्ल हार्बर अटैक जो होने वाला था ये उसके पहले की बात है ना इस तरह इसमें लिखा हुआ है कि सबकॉन्शियस माइंड में कभी भी अगर आप रात में कोई क्वेश्चन पूछते हो तो यू नो समवन हु यू रियली ट्रस्ट वो आपके सपने में आके आपको गाइड करेगा कि ये करो या नहीं करो जैसे इसमें बताया हुआ है कि कभी आपके सपने में मदर आके बोलेंगी कि यहीं रुक जाओ बिकॉज आगे कोई बहुत बड़ा सा पत्थर ऊपर से कहीं नीचे गिरने वाला है लाइक अ फॉलिंग रॉक और अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट गिरने वाला है तो आपको वो चीज कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप वापस आ जाओगे मतलब कोई पीछे से आवाज लगा रहा है ना आप एकदम से टर्न करके देखोगे कि अरे मेरी आवाज आ रही है मेरा नाम किसी ने पुकारा और आप पीछे मुड़ के देखोगे एकदम से फिर पता लगेगा आगे से कुछ बहुत जोर से गिरा है बिकॉज वो एक्चुअली आपको रोक रहा था या आगे कोई एक्सीडेंट होना था तो आपको सबकॉन्शियस माइंड आगे जाने ही नहीं देगा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी अब उस वक्त हमें लगेगा मेरी गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है अभी खरीदी थी अभी तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है वो गाड़ी इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही थी बिकॉज अगर वहां पे जाते तो आप फंस जाते क्योंकि वहां पे कुछ अनहोनी होनी थी इस तरह से तो हमें लगातार अपने सबकॉन्शियस से प्रोटेक्शन मिलती रहती है लेकिन ये हमारे थॉट्स हमारी प्रेयर्स अगर अलाइंड होती हैं लाइक वर्ड यानी कि अगर जैसे हम एफर्मेशंस भी करते हैं और बहुत अच्छे जोन में रहते हैं ऑटोमेटिकली हमें प्रोटेक्शन मिलती रहती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से और अपने आप चीजें बहुत स्मूथली एक डायरेक्शन में जाती है
है ना। इतना ही अभी हमने पढ़ा है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। So thank you so much for being wonderful and for your response, and thank you to everybody on the YouTube as well जो बाद में सुनते हैं।